Hello, my dear students. I hope all of you are stay safe and healthy at your home and follow online mathematics classes. In last three lectures, I have teach you basics of trigonometry and trigonometric function and solve some questions. So now let's start with lecture 4. First we will solve some questions and last slide I provide some practice question to you. Thank you. My dear student, in class today's question number first, see and learn attentively question number first on your screen. If x sine cube theta plus y cos cube theta is equal to tan theta cos theta, y cos theta is equal to 0. So prove that x square plus y square is equal to 1. Solution: given that x sine cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta, equation first, and x sin theta minus y cos theta is equal to 0. इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट किया, इसको समीकरण नंबर 2, और x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा और y इज इक्वल टू x sin थीटा अपॉन cos थीटा. Putting the value of y in equation first, we find x sin cube theta plus in place of y we put x sin theta upon cos theta into cos cube theta is equal to sin theta cos theta. This implies x sin cube theta plus x sin theta cos square theta, cos theta से cos cube theta cos square theta टाइम्स जो डिवाइड हो गया, इसलिए इसको हमने प्लस का x sin theta into cos square theta is equal to sin theta cos theta लिखा. This implies x sin theta, दोनों से मैंने x sin theta इसे कॉमन निकाला, x sin theta दोनों टर्म से कॉमन है तो x sin theta बाहर किया. इन ब्रैकेट जो है यहाँ से x sin क्यूब थीटा में से x sin थीटा निकाला तो sin स्क्वायर थीटा बचा इन ब्रैकेट, प्लस का यहाँ से x sin थीटा गया, cos स्क्वायर थीटा बचा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा. x sin theta we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो यहाँ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हमने पुट किया, और नेक्स्ट स्टेप में x sin theta इनटू जो है इसके स्थान पर 1 is equal to sin theta cos theta. Then we get x is equal to, यहाँ sin theta से sin theta डिवाइड कट गया, x is equal to cos theta. यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड से रिप्रेजेंट किया. Now see attentively, my dear student, putting this value in equation second, x sin theta minus y cos theta is equal to 0. cos x in place of x we put जो है cos theta, x के स्थान पर हमने cos theta रखा, into sin theta माइनस का y cos theta is equal to 0. cos theta दोनों से कॉमन है, cos theta बाहर निकाला, यहाँ से sin theta माइनस y ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू 0 और sin theta माइनस y इज इक्वल टू 0 अपॉन cos theta अर्थात 0. तो यहाँ तो cos theta 0, तो यहाँ जब इसका मान 0 के बराबर है तो यहाँ वी कैन राइट
y इज इक्वल टू जो है साइन थीटा, तो y की वैल्यू यहाँ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर जो है 4 हो गया। टेकिंग LHS, अब हमने यहाँ LHS लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू x एंड y की वैल्यू पुट किया हमने, इसमें x और y के मान रखते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ जो है x एंड y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन थीटा है, थर्ड इक्वेशन में x इज इक्वल टू कॉस थीटा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हमने यहाँ पुट किया इज इक्वल टू एक्स के स्थान पर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई के स्थान पर कॉस साइन थीटा है तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो है 1 होता है, ये टेक्नोमेटिकल आइडेंटिटी होती है, इसलिए इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। See here attentively my dear student, question number 2 on your screen. If x is equal to जो है a cosec theta plus b cot theta and y is equal to a cosec theta minus b cot theta, prove that x plus y upon a का whole square of x plus y upon a minus का whole square of x minus y upon b इज इक्वल टू 4। प्रूव करना है x प्लस वाई बटे a का होल स्क्वायर माइनस का y x माइनस वाई अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हमने यहाँ गिवन दैट x इज इक्वल टू a cosec थीटा प्लस b cot थीटा एंड तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड y इज इक्वल टू a cosec थीटा माइनस का b cot थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसको हमने डिनोट किया इक्वेशन नंबर सेकेंड से। नाउ देन x प्लस वाई इज इक्वल टू जो है, यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आफ्टर एडिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट जो है x प्लस वाई, यहाँ हमने एक और दो को जोड़ा समीकरणों को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a cosec थीटा प्लस b cot थीटा, प्लस का y की वैल्यू है a cosec थीटा माइनस b cot थीटा, माइनस b cot थीटा प्लस का b cot थीटा कैंसिल हो गया, a cosec थीटा ऐड होकर के 2a cosec थीटा आधा जोड़ करके 2a cosec थीटा बन गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 2a cosec थीटा। और हमें यहाँ इक्वेशन x प्लस वाई अपॉन a बनाना है, तो हमने x प्लस वाई अपॉन a लिया, यहाँ इसको a से दोनों बोथ साइड को a से डिवाइड किया, x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया 2 cosec थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का हमने वर्क किया, x प्लस वाई अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया cosec स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड से डिनोट किया फ्रॉम, अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस जो है इक्वेशन सेकेंड, अब हम समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं और फिर पाते हैं वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इसके बाद हम इसे प्राप्त करते हैं, यहाँ x माइनस वाई, एक है x बराबर ये y बराबर ये, तो x में से y को घटाए तो यहाँ से इसमें से इसे घटाएंगे, और x माइनस वाई इज इक्वल टू a cosec थीटा प्लस b cot थीटा माइनस का a cosec थीटा माइनस माइनस प्लस का जो है b cot थीटा हो गया। अब यहाँ a cosec थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2b cot थीटा होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट सी अटेंटिवली हियर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2b cot थीटा, जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ लेफ्ट साइड में x माइनस वाई प्राप्त किया, और राइट साइड में a cosec थीटा प्लस माइनस का कैंसिल हुआ था, और b cot थीटा प्लस b cot थीटा मिलकर के 2b cot थीटा हो गया, और x माइनस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 2 cot थीटा या 2b cot थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ 2b cot थीटा बना क्योंकि b को हमने यहाँ से लाए और b को इसके नीचे कर लिया, x माइनस वाई अपॉन b बनाया इज इक्वल टू 2 cot थीटा हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने, x माइनस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉट स्क्वायर थीटा। x माइनस वाई बटे ए का वर्ग किया इस तरफ और इस तरफ हो गया इसका 2 कॉट थीटा का स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ तो 4 कॉट स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर जो है 4 से इसे हमने रिप्रेजेंट किया। और नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर वी गेट फ्रॉम जो है इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4 वी गेट x प्लस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बाहर लिया हमने इन ब्रैकेट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। So next step x plus y upon a का whole square minus y minus x minus y upon b का whole square is equal to 4 into 1 is equal to 4। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ और इसे हमें प्रूव हो गया। इसको हमने लिया था और RHS हमने इसको प्रूव कर लिया। See here my dear students, question number 3, if sin x plus cos x is equal to m and sec x plus cosec x is equal to n, then prove that n into m square minus 1 is equal to 2m। Solution में given that sin x plus cos x is equal to m, represent this जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से इसको प्रदर्शित किया, एंड sec x plus cosec x is equal to n, इक्वेशन नंबर जो है सेकेंड, इसको हमने समीकरण 2 से प्रदर्शित किया और sec x को हमने लिखा 1 अपॉन cos x प्लस cosec x को 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू n। इनको एलसीएम लिया हमने, sin x cos x हुआ, cos x से cos x कैंसिल हुआ, sin x का 1 में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में sin x आया, प्लस का sin x से एलसीएम में डिवाइड किया तो यहाँ से बचा आपका cos x का न्यूमरेटर 1 में मल्टीप्लाई किया तो cos x इज इक्वल टू जो है n। पुट जो है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें हमने sin x प्लस cos x के स्थान पर हमने इन प्लेस ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट n इज इक्वल टू m अपॉन sin x cos x, दिस रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमने समीकरण नंबर 3 से जो है प्रदर्शित किया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने वर्क किया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू m स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू m स्क्वायर। In next step we get 1 plus 2 sin x, we know that sin square x plus cos square x is equal to 1, so 1 plus 2 sin x cos x is equal to m square, और 2 sin x cos x is equal to m square minus 1, और m square minus 1 is equal to 2 sin x cos x, इक्वेशन नंबर 4। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और 4 के संगत करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड जो इक्वेशन 4, करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत पक्षों का समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों का गुणा करने पर n इंटू जो है इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m अपॉन साइन x इंटू कॉस x प्लस 2 इंटू जो है साइन x कॉस x, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x था, ये हो गया, और उस तरफ उसमें जो है m अपॉन साइन x प्लस साइन x इंटू कॉस x था, तो साइन x कॉस x ये डिवाइड हो गया, 1 हुआ। नेक्स्ट स्टेप इन n इंटू जो है इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m, हेंस प्रूफ, यही हमें इसमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विद्यार्थियों, इफ p इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sin थीटा
and q is equal to tan theta minus sin theta. Then prove that p square minus q square is equal to 4 into square root of जो है p into q. Given that p is equal to tan theta plus sin theta, this represents equation number first, and q is equal to tan theta minus sin theta, this represent by equation number second. इसको हमने समीकरण 2 से प्रदर्शित किया और इसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया. अब अगले स्टेप में देखते हैं. इन दिस नेक्स्ट स्टेप एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर वी गेट, हम प्राप्त करते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा. माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया. टेन थीटा प्लस टेन थीटा मेक टू टेन थीटा. p प्लस क्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा. इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड से रिप्रेजेंट किया. समीकरण नंबर 3 दिया है, इसको नाम. सबट्रैक्ट जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने सबट्रैक्ट किया. आफ्टर सबट्रैक्टिंग वी गेट, एक में से दो को घटाने पर करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इसमें से सबट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास p माइनस क्यू इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा हो गया. माइनस साइन थीटा था, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया. अब टेन थीटा प्लस माइनस का होने से कैंसिल हुआ. साइन थीटा प्लस साइन थीटा मेक टू साइन थीटा. इन नेक्स्ट स्टेप वी गेट p माइनस क्यू इज इक्वल टू टू साइन थीटा. इक्वेशन नंबर 4, this represent equation number 4. Multiplying equation number 3 and equation number 4 we get, समीकरण 3 और 4 का आपस में जो इनके संगत पक्षों का गुणा करने पर हम प्राप्त करते हैं p प्लस क्यू इन ब्रैकेट p प्लस क्यू इंटू इन ब्रैकेट जो है p माइनस क्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा इंटू टू साइन थीटा. इट मेक्स जो है 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा. इससे बनता है 4 साइन थीटा टेन थीटा इंटू साइन थीटा. 4 साइन टेन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी कैन फाइंड p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसको हमने 4 टेन थीटा साइन थीटा को 4 बाहर किया और टेन थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया. इन स्क्वायर रूट लगा दिया, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कोई डिफरेंस नहीं होगा. इसको 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. अब यहाँ हमने टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा. इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर. इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट स्टेप में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया. यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसको हमने पुनः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. शो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने इस फॉर्म में अरेंज किया इज इक्वल टू 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ जो है टेन थीटा इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज किया. नेक्स्ट ब्रैकेट में इंटू में टेन थीटा माइनस साइन थीटा. अब यहाँ वी फाइंड टेन थीटा प्लस साइन थीटा. पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जो है p और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इन प्लेस ऑफ टेन थीटा माइनस साइन थीटा वी पुट जो है q. सो नेक्स्ट स्टेप p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू. दिस इज जो है राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड. हमें यही सिद्ध करना था. p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू. यही हमें यहाँ सिद्ध करना था. इसे लिखा है हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए माय डियर स्टूडेंट सी
attentively and learn attentively. Question number 5. If tan theta is equal to m upon n, prove that m sin theta minus n cos theta upon m sin theta minus plus n cos theta is equal to m square minus n square upon m square plus n square. Solution: given that tan theta is equal to m upon n, taking LHS, लेफ्ट साइड को हमने लिया m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस जो है n cos थीटा, इसको हमने लिया और लेने के बाद यहाँ m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू, इससे हमने n cos थीटा से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय जो है n cos थीटा, n cos थीटा से हमने इसमें भाग दे दिया और जब हमने n cos थीटा का इसमें भाग दिया, क्योंकि यहाँ tan थीटा के फॉर्म में बनाने के लिए क्यों tan थीटा इज इक्वल टू m अपॉन n हमें मालूम है, इसलिए हमने इसको यहाँ n cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, या डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम n cos थीटा को कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ कॉमन निकाला इसमें से, न्यूमरेटर में से, इसमें से हमने जो है इसमें से n cos थीटा निकाला, तो यहाँ तो n cos थीटा था नहीं, इसमें n cos थीटा का मल्टीप्लाई किया, n cos थीटा से डिवाइड किया, इसे n cos थीटा मल्टीप्लाई वाला बाहर आया, इनटू में m अपॉन n जो है, इनटू यहाँ m अपॉन n हुआ और sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस का n cos थीटा से n cos थीटा कॉमन गया, -1 बचा, ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन में सेम वही m sin थीटा में n cos थीटा का मल्टीप्लाई किया, n cos थीटा से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला n cos थीटा कॉमन निकाला, इन ब्रैकेट लिखा m अपॉन n जो है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस का यहाँ हो गया, जो माइनस था यहाँ हो गया प्लस का 1, यहाँ हो गया +1, ऊपर माइनस है नीचे +1 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में see here my dear student, next step this implies m upon n sin theta upon cos theta को tan theta माइनस का 1 अपॉन m अपॉन n tan theta plus 1, पुट tan थीटा इज इक्वल टू m अपॉन n, यहाँ हमने tan थीटा के स्थान पर m अपॉन n रखा और m अपॉन n इंटू m अपॉन n माइनस 1 अपॉन m अपॉन n इंटू m अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन जो है n स्क्वायर, नीचे भी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ और इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, यही हमें यहाँ प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन जो है 12, प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 40, और इसको हमें यहाँ प्रूव करना है। सॉल्यूशन में मैंने लिखा टेकिंग LHS, बाएं पक्ष को हमने लिया, वाम पक्ष लिया, वाम पक्ष में यही था 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय sin थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है sin थीटा से डिवाइड किया है, sin थीटा का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने भाग दिया, तो यहाँ 3 इंटू साइन थीटा अपॉन जो है यहाँ sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, डिनोमिनेटर वाले टर्म में देखें 4 इंटू जो है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से sin थीटा अपॉन sin थीटा 1 हो गया, 3 यहाँ इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा हो गया माइनस का, अपॉन सेम यहाँ 4 cos थीटा अपॉन sin थीटा 4 cos थीटा हो गया, प्लस का 5 sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस का 5 हो गया। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ cot थीटा, यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हमें 5 अपॉन 12, cot थीटा की वैल्यू हमें 5 अपॉन 12 जो है मालूम है, 3 माइनस 2 इंटू इन cot थीटा को रिप्लेस किया 5 अपॉन 12 से, 2 इंटू 5 अपॉन 12 अपॉन
सेम में नीचे 4 इंटू जो है यहाँ 4 कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हमने पुनः 4 इंटू जो है 5/12 प्लस का यहाँ 5। तो यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 यहाँ 36 12 का जो है एलसीएम लिया 12 और 1 का इसके 3/1 लिख दिया, एलसीएम हुआ जो है 12। तो यहाँ 36 माइनस का 10 5 टू 10 अपॉन 12 सेम नीचे 4 5 का जो है 20 प्लस का जो है 60 अपॉन में जो है 60 अपॉन 12 40 प्लस 60 अपॉन जो है 12। सेम यहाँ भी मैंने आपको जो यहाँ वैसे ही यहाँ भी लिखा इज इक्वल टू 26 अपॉन जो है 80, 26 अपॉन 80 अर्थात इसको हम 13 अपॉन 40 नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके 2 से डिवाइड किया 26 को 80 को, तो यह 13 टाइम्स डिवाइड हुआ, ये 40 टाइम्स, तो 13 अपॉन जो है 40 हमारा यही जो है प्रूव करना था हमें 13 अपॉन 40। सो वी कैन फाइंड this relation, yeah, this answer. See here attentively my dear student, question number 7 of this class. If m is equal to sec theta plus tan theta, यदि m बराबर sec theta plus tan theta, prove that इसको prove that tan theta is equal to first part इसका tan theta is equal to m square minus 1 upon 2m and second part prove करना है हमें sin theta is equal to m square minus 1 upon m square plus 1। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन में गिवन m इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा और m माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क किया हमने। तो m माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट साइड में sec थीटा स्क्वायर हुआ sec स्क्वायर थीटा और इसका एक्सपेंशन किया है माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन किया है m स्क्वायर माइनस 2m tan थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बोथ साइड से इक्वल होने से कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 और m स्क्वायर राइट साइड ट्रांसपोजिशन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m tan थीटा, 2m tan थीटा माइनस का था अपोजिट साइड ले गए, राइट साइड में ले गए इसको हम, तो 2m tan थीटा हो गया और tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जो है 2m, tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। इक्वेशन नंबर, इसको हमने इक्वेशन नंबर से tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जो है 2m, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया। गिवन m इज इक्वल टू यहाँ दिया गया है, पुनः हम वही m इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, so we can find 1 plus sin theta upon cos theta, then cos theta is equal to 1 plus sin theta upon m, इक्वेशन नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट किया हमने, cos थीटा की वैल्यू हो गई जो है सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाइंग corresponding side of equation first and equation second we get, समीकरण एक और दो के संगत पक्षों का गुणा करने पर हम प्राप्त करते हैं tan थीटा इंटू साइन थीटा, समीकरण एक का पहला पक्ष tan थीटा है राइट लेफ्ट साइड और इसका cos थीटा, tan थीटा इंटू cos थीटा हो गया, राइट साइड में इसमें m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m इंटू इसका राइट साइड 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ tan थीटा इंटू cos थीटा, वी नो दैट जो है tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m का m में मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर 2m स्क्वायर इंटू डेनोमिनेटर में 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप sin थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर प्लस सेपरेट कर दिया हमने m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर का 1 में और sin थीटा मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म को प्लस m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर sin थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ बाई साइड ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण से जो है हमने यहाँ पक्षांतरण किया इसका और m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर sin थीटा को लेफ्ट साइड ले आए, sin थीटा के साइड में तो sin थीटा माइनस जो है ये हो जाएगा, तो यहाँ sin थीटा हमने इसमें से सिंपलाई sin थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस यहाँ से 1 और इसमें से जब हमने sin थीटा लिया तो माइनस का
m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको समराइज किया 1 माइनस इसको सबट्रैक्ट किया, दिस इंप्लाइज इन ब्रैकेट 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर। यहाँ से अब यहाँ हमने देखा साइड से 2m स्क्वायर से m स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बचा, न्यूमरेटर में m स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2m स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m स्क्वायर। दोनों से डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं, इनसे दोनों साइड में 2m स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो यहाँ और साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इससे हमने डिवाइड कर दिया m स्क्वायर प्लस 1 जो है साइन थीटा के साथ था, इसको हमने इस तरफ डिवाइड किया, इससे बोथ साइड को m स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 हेंस प्रूव। यही हमें सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 प्रूव करना था। माय डियर स्टूडेंट, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7 ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन में LHS टेकिंग LHS sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin sec थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ इनको हमने एक्सपेंशन किया, साइन होल स्क्वायर ऑफ sin थीटा प्लस cosec थीटा का एक्सपेंशन किया, इसी तरह से इसका भी एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने पर विस्तार करने पर होल स्क्वायर को खोला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a के स्थान पर sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा, b के स्थान पर cosec थीटा था तो b स्क्वायर में cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेम यहाँ भी cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा का एक्सपेंशन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा। We know that sin theta into cosec theta is equal to 1, cos theta into sec theta is equal to 1, and sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. These are trigonometrical identities, and sin square theta plus cos square theta is equal to 1। यहाँ हमने sin square theta plus cos square theta को एक साथ रखा, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से प्लस 1 इसका मान 1 रखेंगे, प्लस का अब यहाँ 2 sin थीटा cosec थीटा को प्लस का 2 हो गया, प्लस cosec स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा, और प्लस का 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, पुनः cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस का 2 हो गया, प्लस sec स्क्वायर थीटा को पुनः मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, क्योंकि हमें tan स्क्वायर cot स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमने 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस का 1 यहाँ से, और cot प्लस का जो है यहाँ से 2 प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ से जो है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सारे टर्म्स ऐड होने पर ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1 2 3 4 और 6 प्लस का जो है 1 7 प्लस का 7 इज इक्वल टू RHS। चूंकि वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप some practice, I gave you some जो है next slide, I gave you some practice question, so you will जो है if you learn जो है this class attentively, you will जो है solve, I giving जो है practice questions and try to solve given practice questions। Thank you।